बिफोर आई गो टू यूरोप ना, एक एशिया का एक कंट्री जॉर्जिया वाज इन न्यूज रिसेंटली, वो हमने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो एट नाइट यस्टरडे आई वाज रिव्यूइंग कोई अपने पुराने ही न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इफ आई हैव मिस्ड एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉर्जिया वाज वन कंट्री दैट हैड मिस्ड। तो वैसे तो जॉर्जिया वी हैव स्टडीड, जॉर्जिया इज पार्ट ऑफ कॉकेशियन कंट्री, है ना। जॉर्जिया, डज इट हैव बॉर्डर विद ब्लैक सी, है ना। कॉकेशियन कंट्रीज आर बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन। उस तरफ अजरबैजान इज हैविंग बाउंड्री विद कैस्पियन, इस तरफ जॉर्जिया इज हैविंग बाउंड्री विद ब्लैक सी, राइट। तो जॉर्जिया यहाँ पे लोकेटेड, देखो ब्लैक सी, नीचे टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, फ्रॉम दैट साइड टर्की, फिर अर्मेनिया, फिर अजरबैजान, and on top of it, what is there? Russia is there. Yesterday we had spoken about some of the territories of Russia here. Dagestan. Why was Dagestan in news? Terrorist attack, है ना. It's a very diverse province. It's called Republic of Dagestan, but it's a province in Russia. यहीं पे we had spoken about Chechnya. Chechnya में भी there is uprising for independent countries, independent country and all. ऐसे Georgia. Georgia was a country that was formed in 1991 after disintegration of Russia, and it has remained kind of unstable. जैसे there has been secessionist wars. जैसे there are two regions here. You will see South Ossetia and Abkhazia. तो जैसे in case of Armenia, Azerbaijan, we looked at a territory which was in news, Nagorno Karabakh. उसमें there was dispute between Armenia and Azerbaijan. Or we looked at Dagestan or Chechnya in case of Russia. ऐसे there are two territories in Georgia जहाँ पे secessionist movements are going on. One of them is South Ossetia, other is Abkhazia. So it has faced economic challenges after becoming a separate country. It has faced economic challenges, it has faced political challenges, it is facing these problems here. In 2003, a revolution happened here that is called Rose Revolution. In 2003, a revolution happened. In fact, I should have written it in capitals. Rose Revolution. Rose Revolution. थोड़ा prelims के लिए ध्यान रखना है. Rose Revolution is associated with what? Is associated with Georgia. So, एक revolution happened. This was a peaceful revolution where Georgia, after this, what happened? Georgia moved towards a more pro-West foreign policy, pro-US foreign policy. It moved towards a more democratic, liberal economic system and eventually wanted membership of EU and NATO. पर आपको EU का membership मिलने के लिए, NATO का membership मिलने के लिए, they put several commitments. They say that free and fair election should be happening, the diversity should be respected, and those kind of conditions are put here. So in 2006, 2003, that is where they started moving. This western orientation led to Russia-Georgia war in 2008. जैसे यूक्रेन का जब वेस्टर्न ओरिएंटेशन हुआ तो यूक्रेन में भी वॉर हो रहा है, ऐसे द सेम थिंग हैपेंड इन 2008. अभी व्हाई वाज इट इन न्यूज? द प्राइम मिनिस्टर इराकली कोबाखिड्जे, he has postponed EU membership talks till 2028. What he has announced is till 2028 EU membership talks are postponed. He argues that EU is blackmailing us, some leaders in EU is harassing us. Basically, European Parliament said that your election that happened in October, जिससे आप prime minister बने हो, that was unfair election. So conduct the election again in 1 year, within 1 year. He says there is no scope. अब ये तो prime minister बन गए हैं. There is no scope of conducting the election. So अब फिर तो talks for European Union membership will not be possible. So that thing has been postponed, and this led to protest in Georgia because people in Georgia are thinking that you're again diverting towards Russia by going away from EU. यहाँ पे Russia may be playing a role and Russia may be bribing this prime minister. Russia may be doing something to keep Georgia under their influence and away from Europe or European Union. इस वजह से Georgia was in news. तो Georgia कहाँ है, Georgia का capital कहाँ है, neighboring countries कौन सी हैं, which are the secessionist regions there, वो सारी चीजें हमें थोड़ी पता होनी चाहिए. Okay, this was Asia only. I'm sorry, this I should have done in Asia, but मैंने कल रात में अपडेट किया था. ऐसे ही
टुडे ऑल्सो एट नाइट आफ्टर perhaps 10 PM मैं रात भर बैठ के यही करूंगा. I'll go through all my previous articles and see if there is anything important I have missed and I will include it in the update section tomorrow. अब आ जाते हैं. Now let's come to Europe. We'll be starting with Europe. तो Europe में we're starting with the Black Sea because till Turkey we have seen everything. है ना, टर्की के जस्ट ऊपर जा रहे हो, यू आर कमिंग टू ब्लैक सी. वी हैव सीन कैस्पियन सी, मेंबर कंट्रीज ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग कैस्पियन सी, कटियार, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया, है ना. यहां पे भी एक ब्रू आरजीटी करके शॉर्ट फॉर्म याद रखिए. ब्रू BRURGT. बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, मोल्डोवा नहीं है, मोल्डोवा डजंट हैव बॉर्डर विथ ब्लैक सी. बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की. ब्रू आरजीटी 2-3 बार 4 बार 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 आके यहां सोचोगे ना तो यूल बी लाइक हो जाएगा, इतना इशू नहीं. ब्रू आरजीटी, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की. अब ये देखो, रशिया, जॉर्जिया, टर्की आर वेरी इजी बिकॉज व्हेन वी स्टडीड कॉकेशियन कंट्रीज वी सेड एक साइड ऑन द वन साइड वी हैव ब्लैक सी, ऑन द अदर साइड वी हैव कैस्पियन सी. तो कॉकेशियन कंट्रीज में इस तरफ से तो वी हैड स्टार्टेड विद बुल्गारिया, ऊपर रशिया है ही, है ना. यूक्रेन, इट इज द एक्सेस टू ब्लैक सी व्हिच इज द मेजर प्रॉब्लम, है ना. यूक्रेन वॉर, तो ये नीचे टर्की है ही. बस बुल्गारिया, रोमानिया इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. अदरवाइज यूक्रेन Black Sea, Russia Black Sea, Georgia Black Sea, Turkey Black Sea is very simple, very easy, very common thing there. तो neighboring countries of Black Sea, क्या हम सब comfortable है इसमें? अब in the Black Sea there is Crimean Peninsula. There is this peninsula. This is called what? Crimean Peninsula. And this Crimean Peninsula and this peninsula of Russia, इन दोनों के बीच में एक नैरो स्ट्रेट है दैट इज नोन एज कर्च स्ट्रेट. एंड ऑन दिस साइड द सी दैट इज फॉर्म्ड इज सी ऑफ एज़ोव. तो वी हैव ब्लैक सी, कर्च स्ट्रेट एंड सी ऑफ एज़ोव. यहां पे व्हाट डिड वी हैड? बॉस्फोरस सी, उससे वी केम टू सी ऑफ मार्मारा, एंड यहां पे वी हैड डार्डेनेलिस, उससे वी केम टू एगियन सी. तो if I have to start from here and go till Sea of Azov, I'll go to Aegean Sea. Aegean Sea से I'll enter Dardanelles Strait. I'll go to Sea of Marmara. I'll go to Bosphorus Strait. I'll go to Black Sea. I'll go to Kerch Strait. I'll go to Sea of Azov. Suppose आपको अमेरिका से भेजा गया, जाओ Sea of Azov. तो आप अमेरिका से, मान लो ईस्ट कोस्ट से आ रहे हो, you'll first come where? स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, जिब्राल्टर, है ना. वो अटलांटिक ओशन होगा, उससे अटलांटिक से यू विल एंटर इनटू मेडिटेरेनियन सी, राइट. इफ यू आर आस्क्ड कि यार यहां से लेट्स से फ्लोरिडा से यू हैव टू गो टू ब्लैक सी, तो रास्ते में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर विच विल टेक यू टू मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट क्या है? एगियन सी. एगियन सी में यू विल कम टू स्टेट ऑफ डार्डेनेलिस, यू विल गो टू सी ऑफ मार्मारा, फिर स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, यू विल गो टू ब्लैक सी, स्टेट ऑफ कर्च या कर्च स्टेट, यू विल गो टू सी ऑफ एज़ोव. समझ में आ रहा है? पक्का? ये 100 लोग देख रहे हैं, 60 लाइक्स ही हैं. पसंद नहीं आ रही तुम्हें मेरी क्लासेस? है यार, लाइक कर दिया करो, ज्यादा व्यूज मिलेंगे मुझे, ज्यादा लोग देख पाएंगे. तो मैं आपको पता है लास्ट ईयर क्या हुआ? लास्ट ईयर आई टुक दीस क्लासेस ऑन 15th March और समथिंग, है ना. अब हमारे यूट्यूब पे कम लोग होते हैं, कम लोग जानते हैं. सेम क्लास विथ एग्जैक्टली सेम नोट्स विथ सम मॉडिफिकेशन एक दूसरे टीचर ने लिया. उसके वीडियो पे एक दिन में 60,000 व्यूज. मुझे करण सर ने पूरा वीडियो देख के बोला, सर उसे कुछ नहीं आता,
वो आपका एक्सप्लेनेशन सुन सुन के आधा बोल पाया है, आधा नहीं बोल पाया है, बिकॉज हमारे चैनल पे इतने लोग नहीं होते, तो कब लोग देख रहे होते हैं, अब इसको ही बेस बना के बहुत सारे लोग पढ़ाने आएंगे, एंड देन मोर पीपल वुड बी वाचिंग देम, एंड देन एग्जाम के बाद ऐसा होगा मेहनत मैंने करी है, यहां से देखा वहां से देखा, इतने एग्जॉस्टिवली किसी टीचर ने अभी तक नहीं पढ़ाया है, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। अब शुरू हो जाएगा 5-10 दिन बाद, हाँ 5-10 दिन बाद शुरू होगा, आप देखना एग्जॉस्टिवली एकदम इतने इस तरीके से अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है, अब शुरू होगा, है ना। दैट इज वाई प्लीज डू लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, सो दैट आई एम एबल टू रीच मोर पीपल, आई एम एबल टू आप, मेरे को पता है आप लोग ना बहुत जलते हो दूसरे स्टूडेंट से, दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए, है ना, बोलते हमारे सिलेक्शन के बाद पता लगे, ऐसे नहीं करो यार आपके सिलेक्शन होने से पहले लेवल अप बंद ना हो जाए। चलिए लेट्स कम बैक। तो हम क्या देख रहे थे, ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्री ब्रू आरजीटी, ब्लैक सी, क्रिमियन पेनिनसुला, सी ऑफ अजोव, कर्च स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट bringing into Sea of Marmara, Dardanelles Strait bringing it to Aegean Sea. Aegean Sea is part of extension of Mediterranean Sea. Okay. अब तो ब्रू आरजीटी हो गया, कच स्ट्रेट वाला चीज हो गया। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखो, एक है सेवस्टोपोल, कैन यू सी दिस, यहां पे ना रशिया का फ्लीट है। तो अब इन 2015 till 2015 Crimean Peninsula was part of Ukraine. Till 2014 Crimean Peninsula was part of Ukraine. 2014 में we'll understand the politics behind it. Crimean Peninsula पे किसने कंट्रोल ले लिया, रशिया ने, and after that Russia was removed from G8. Now G8 is G7. That was after annexation of this peninsula. तो वन पोर्ट देयर, सेवस्टोपोल। तो अभी किसका कंट्रोल है इस पे, रशिया का। ओके, इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो इनटू ब्लैक सी, डेन्यूबे, नाइपर, डॉन। इसमें डेन्यूबे तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ लॉट ऑफ डिटेल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स। तो डी, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स व्हिच फॉल इनटू ब्लैक सी। कैस्पियन सी में कौन से रिवर्स फॉल हो रहे थे, वोल्गा, यूराल, ये 2 इंपॉर्टेंट थे, और भी थे, वोल्गा, यूराल, वी हैड सीन। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, यांगसे। वर्ल्ड का नाइल, अभी आएंगे, विल कम आफ्टर यूरोप, विल कम टू अफ्रीका, देयर विल स्टडी नाइल। रशिया यूक्रेन एग्री ऑन नेवल सीजफायर इन ब्लैक सी, मार्च 2025। अब देखो ब्लैक सी की वजह से क्या हो रहा है, ब्लैक सी में व्हेन दे आर फाइटिंग, दे हैव, देखो रशिया यूक्रेन हैव टेंशंस हियर। तो Russia has occupied this territory of Ukraine. In fact, let me take you to this part. This is Ukraine, this is Russia. पहले Russia occupied Crimean Peninsula. Then, in order to ensure that it has land access to Crimean Peninsula, पहले उसने यहाँ पे bridges बनाए. This was Russia. It made bridges. But then, as Ukraine got more close to west, Russia has currently occupied this territory. यहाँ पे 4 different provinces, I will talk about them. Russia has occupied all this thing. In the process, what has happened? This region of the world produces a lot of grain, and all that export happens through Black Sea. So when they are fighting in the Black Sea, it's having negative impact on the world's food security also. It's having negative impacts on a lot of other things. So as when Trump has come to power, क्या कोशिश करी जा रही है कि slowly and slowly some level of fight reduces. तो recently in 2025 अमेरिका ने यूक्रेन के साथ डिस्कशन किया, अमेरिका ने रशिया के साथ डिस्कशन किया, and they have come to an agreement where there is kind of a ceasefire where in the Black Sea region. In 2025, March 2025 में this was the thing that was in news. Russia and Ukraine have agreed to a naval ceasefire in the Black Sea in separate deals with US after 3 days of peace talks in Riyadh. Riyadh में Saudi Arabia में peace talks हो रहे थे. Ukrainian President Zelensky has said entire agreement was effective immediately, but Russia has said नहीं. Entire agreement is not in force immediately. We want sanctions to be removed. So Putin has said कि
It will only come into force after a number of sanctions against its food and fertilizer trade were lifted. So there is different interpretation of the ceasefire, naval ceasefire, which agreement which they have agreed to. But ये अभी मार्च 2025 में न्यूज में था, कहाँ पे? ब्लैक सी में they will not be fighting, ये एग्रीमेंट हुआ है. It has not come into force because Putin says that पहले the Russia पे जो sanctions which have been imposed that should be removed. But Black Sea न्यूज में है ना, तो Black Sea से एसोसिएटेड चीजें एग्जाम में आ सकती हैं. Now let's go to Sea of Azov थोड़ा सा. वैसे तो we have understood Sea of Azov क्या है ना? Every time we keep on revolving around the same area, we revise that topic more and more. So it is linked to Black Sea by Strait of Kerch. It's northern extension of Black Sea. Black Sea का northern extension है. It has Ukraine in the northwest and Russia in the east. These are the only two countries which it is bordering. Don and Kuban are the major rivers that flow into it, and it is the shallowest sea in the world. Its depth is only from 0.9 meters to 14 meters. कोई और water body has not been called sea. ये क्या, इस आत्मा क्यों भटक रही है? क्या हो गया? वहां से दिख नहीं रहा था. तुम बस आंखें लगाते हो, दिल भी लगाया करो, दिखेगा. ओके, लेट्स कम बैक. हाँ, शैलोएस्ट मतलब यहाँ पे शैलोएस्ट का मतलब वो नहीं है कि एट व्हाट हाइट इज इट स्टार्टिंग. शैलोएस्ट इज हाउ मच वाटर इट हैज. तो वाटर लेवल हियर वेरीज फ्रॉम 0.9 मीटर्स टू, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट होगा दैट इज आल्सो ओनली 14 मीटर्स. इनफैक्ट वाटर कीप्स ऑन फ्लोइंग आउट ऑफ इट. सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी में रिवर्स आर ब्रिंगिंग वाटर हियर, and Sea of Azov से water keeps on coming in the Black Sea. So thus it is one of the shallowest sea in the world, and there's a constant outflow of water from this sea to the Black Sea. ये समझ में आया? Black Sea, Sea of Azov, Black Sea की neighboring country Bru RGT. Sea of Azov में दो ही neighbors. There are only two neighbors in Sea of Azov. Which are those? Ukraine and Russia. Kerch Strait, the only connection point between Black Sea and Sea of Azov. यहाँ पे ना there are two important Ukrainian ports, Mariupol and Berdyansk. अपन ने अभी सेवास्टोपोल देखा था, वो क्रिमियन पेनिनसुला में है. बट इफ यू एंटर Sea of Azov, वहां पे there are two important Ukrainian ports, Mariupol and Berdyansk. इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए. कर्च ब्रिज ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया. मेनलैंड रशिया, तो इनिशियली रशिया डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर द यूक्रेनियन टेरिटरीज. So the only land connection with the Crimean Peninsula was this bridge that was created in 2000. It was opened in 2018. So again, if I'll take you here, let me explain this thing. देखो, in 2014, what did we do, or what did Russia do? ना ऐसे रशिया के साथ कनेक्शन फील करता है ना. तो अबे Russia has always been a friend, ना? Just friends. हो जाओ चुप, आ जाओ. तो we annexed नहीं रशिया. रशिया के साथ वी क्यों आ रहा है? रशिया annexed क्रिमियन पेनिनसुला, है ना. अब सर्बिया, why is Serbia unhappy? So Russia annexed Crimean Peninsula, but अब Crimean Peninsula पे how does it reach? It did not have any land connection. This is तो Ukraine, it had got control over this region after 2022 war, है ना. Before that, so it had created a bridge here. This is called Kerch Bridge, and it was opened with a lot of fanfare in 2018. Very recently it was opened. This was a very important moment because now वो डायरेक्ट लैंड कनेक्शन था किसके साथ? विद द क्रिमियन पेनिनसुला. एंड रिसेंटली जब वॉर हो रहा था तो देयर वर सम बॉम्ब अटैक्स ऑन दिस ब्रिज. इस वजह से दिस ब्रिज वाज आल्सो इन न्यूज़. अब तो कर्च ब्रिज, कर्च स्ट्रेट पता है. कर्च ब्रिज, उसका सिग्निफिकेंस फॉर रशिया in the past significance was much higher. Today when Russia has control over Donetsk and all this region, this Donbas region, अभी इस region के बारे में पढ़ते हैं, we'll come to this region, then इसका significance reduces a bit. Now it has land connection to reach Crimean Peninsula. Earlier it did not have that connection.
क्रिमियन पेनिनसुला, दिस पेनिनसुला कर्ट स्टेट, ठीक है। इस पे ये पोर्ट है सेवास्टोपोल पोर्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इट हैज प्रीटी हाई पॉपुलेशन, 2.4 मिलियन पीपल लिव हियर। पोर्ट सिटी ऑफ सेवास्टोपोल सर्व्स एज द हेडक्वार्टर ऑफ रशियन ब्लैक सी फ्लीट। रशिया का पैसिफिक फ्लीट कहां पे है? व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक वेरी क्लोज टू नॉर्थ कोरिया बॉर्डर, है ना। व्लादिवोस्टोक इज देयर एंड Black Sea fleet is on Sevastopol. Okay, let's come to Ukraine. अब यूक्रेन यूरोप में ईस्टर्न साइड पे है, यूक्रेन यूरोप में वेस्ट साइड पे वी हैव फ्रांस, इंग्लैंड, है ना। सेंटर में वी हैव दीज कंट्रीज बाल्कन्स एंड ऑल, और ईस्ट में आओगे तो यू हैव एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ऊपर नीचे बेलारूस, यूक्रेन, दीज आर यूरोपियन कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न साइड। फिर आगे जाओगे तो यू हैव रशिया, रशिया कॉन्टिनेंटल एशिया में है। तो यूक्रेन इज अ कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन। अब नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन, you'll see, no, you'll see हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, रोमानिया, मोल्डोवा। अब ये 2022 प्री में आ चुका है, 2022 या 23 प्री में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ यूक्रेन, क्योंकि 22-23 में वॉर हुआ था। एंड आप अगर ना उस साल का भी यूट्यूब वीडियो जाके देखोगे, यू विल गेट द सेम क्लास, मी डिस्कसिंग इट लाइक दिस। वहां पे ना एक शॉर्ट फॉर्म बताया था हमने क्लास में, हंगरी स्लो पोलर बियर ऑफ रशिया रोमिंग इन मोल्डोवा। हंगरी, अब ये हंगरी है, हम हंगरी बना रहे हैं। स्लोवाकिया स्लो, पोलैंड पोलर, बेलारूस बियर ऑफ रशिया रोमिंग इन मोल्डोवा। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, रोमानिया, मोल्डोवा, रोमानिया एंड मोल्डोवा। Okay, are we comfortable here? Neighboring countries of Ukraine, will we be able to answer it? मैं कल आके ना सबसे पहले यही पूछूंगा, जिन जिन कंट्रीज की नेबरिंग कंट्रीज पढ़ाई है ना, सब पूछने वाला हूं एक साथ। कर दोगे? कल रिवाइज करके आना। टुमारो वी आर आल्सो गोइंग टू डू PYQs, है ना। आई ऑलरेडी हैव 60 PYQs फॉर मैपिंग ओनली। इंटरनेशनल बॉडीज के PYQs और अलग है ना। वी हैव 60+ PYQs एंड PYQs between 2005 to 2015 are very less. So 1995 to 2015 are very less. PYQs कब increase हुए? Especially after 2020, PYQs from mapping section have increased. That is, UPSC has started emphasizing on this international mapping a lot. तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना है। What were we talking about? यूक्रेन की neighboring countries, सब सोच लो, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, रोमानिया एंड मोल्डोवा। अब इसको ना one तो we have crammed it like this, we have remember it like this. दूसरा, if you'll apply थोड़ा सा understanding, we have done यूरोप का मैप बहुत डिटेल में, we have kept on talking about Belarus, we have said कि बेलारूस के थ्रू भी यूक्रेन पे अटैक हुआ है, तो बेलारूस must be bordering Ukraine, very close to Russia, उससे you'll be able to answer it. Then we have looked at these countries also. Bulgaria, Romania, are they part of European Union? Are they also part of NATO? बुल्गारिया, रोमानिया नाटो के भी पार्ट थे, ये अपने देखा है, इट्स ऑन दिस साइड। तो चेक स्लोवाकिया वाला, चेक स्लोवाकिया के पर्सपेक्टिव से वी हैड सीन दैट, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर वाले पर्सपेक्टिव से वी हैड सीन दैट। तो ऑल दीज कंट्रीज, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, रोमानिया एंड मोल्डोवा। मोल्डोवा स्पेशली सिग्निफिकेंट, ये ना इनलैंड कंट्री हो जाता है, which is having border with Ukraine, which is having border with Romania, but is not having border with Black Sea. Okay. It has, तो अब when we go to Ukraine, तो यूक्रेन का कोस्ट लाइन किस किस के साथ है? Sea of Azov, Black Sea, easy one. Recent political events. So what has, like, what is this war between Russia and Ukraine? So let's see what has happened in the last 30-35 years. 1991 से अब तक क्या हुआ? देखो, in 1991 Ukraine, USSR disintegration happened. Ukraine
was formed as a separate country. In fact, Ukraine is the second largest country in Europe. Largest कौन है? Russia. Russia के बाद in terms of area, the second largest country is Ukraine. At that time, Ukraine also had large number of nuclear weapons. But the P5 countries convinced them, तुम अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर दो, NPT साइन करो, you will not have any problem, we'll give you all the technology, है ना? इंडिया से भी यही बोला जा रहा था, इंडिया ने बोला भाड़ में जाओ, बट यूक्रेन डिड नॉट. तो वी सी यूक्रेन को क्या प्रॉब्लम. सो एनीवेज, तो इन 1991 यूक्रेन वाज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप. यूक्रेन ऑल्सो अभी भी है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया. यूक्रेन ऑल्सो हैड लॉट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन and it decided to be a neutral country. It will be a neutral state forming limited partnership with both Russia and NATO. अगर ये NATO की तरफ जाएगा तो Russia will be threatened. अगर ये Russia की तरफ रहेगा तो NATO will be like tensed कि Russia के alliance में. तो it decided to be a neutral country. In 2014 what happened was, एक president थे यूक्रेन के, president Viktor Yanukovych. He rejected an association with the European Union in favor of close ties with Moscow. Like Ukraine and European Union के बीच में coordination वो हो रहा था, but this person Viktor Yanukovych, he had close relations with Russia and thus he rejected the association with Europe or European Union. There were protests within Ukraine against this and this president was removed. Other president was brought into play, but the other president was against Russia and very pro यूरोपियन यूनियन. तो रशिया, व्हेन रशिया सॉ ऑल दिस हैपनिंग, रशिया ने बोला पहले तो क्रीमिया ले लो. इफ यूरोप का इन्फ्लुएंस इंक्रीजेस इन वेयर, इन यूक्रेन, आर एक्सेस टू ब्लैक सी, आर एक्सेस टू क्रीमिया विल गेट अफेक्टेड. तो एट दैट टाइम ओनली प्रीएम्प्टिव मेजर रशिया ने लिया, टेक होल्ड ऑफ क्रीमिया. तो उसके बाद रशिया, लॉट ऑफ सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन रशिया, economic sanctions, financial sanctions, a lot of those issues Russia has faced. Even after that, तो हम कहाँ पहुंचे 2014 में? Viktor Yanukovych wanted to remain close to Russia. People protested. Yanukovych was removed. New president came. He was closer to Europe. Russia was like, preemptive measure, take over Crimean Peninsula. But since then there has been tensions between Russia, Ukraine और Russia and West. ये लड़ाई यूक्रेन की है ही नहीं. The Ukraine is suffering the most, but it is a war between Russia and US. अब यूक्रेन NATO का मेंबर नहीं है तो US आके cannot directly fight, but in reality it is the tension between Russia and US बिना वजह यूक्रेन की लगी पड़ी है. एंड फिर वो व्हाइट हाउस में बुला के भी बेइज्जती कर देते हैं. दिस इज लाइक, आपको किसी पे डिपेंडेंट इसलिए नहीं होना चाहिए. नेवर ट्रस्ट एनीवन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, बी इट इन पॉलिटिक्स और इन पर्सनल लाइफ. नेवर. हमें ना हमेशा, इसीलिए तो सारे PYQs करो, देखो हो पा रहे कि नहीं, तभी एक टीचर पे ट्रस्ट करो. वरना सारे टीचर्स क्या बोलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा उसके बिना कुछ नहीं आएगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा. अब पॉइंट ये है कि सारे PYQs मैपिंग के उठाओ और जो जो टीचर से बोला है कि कहाँ तुमने कहाँ पढ़ाया, देखो ये देखो, या इस बार न्यूज में तो ना वो है. इसीलिए कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो, किसी भी टीचर पे अपने खुद से डू ड्यू डिलिजेंस एंड देन टेक अ कॉल. तो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि, या तो आपके एक्सपीरियंस से ट्रस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, या दूसरा एक और ये भी हो सकता है सर इससे ज्यादा मैं पढ़ के मैं यही नहीं पढ़ पा रहा और ज्यादा क्या पढ़ूंगा, है ना, आपने कुछ और समय दिया ही नहीं है. तो इसलिए आपको समझ में भी आ रहा है ना, सारी चीजें हम सिस्टमैटिकली कर रहे हैं. लेट्स कम बैक. क्रिमियन पेनिनसुला ले लिया गया, टेंशन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इन दिस रीजन ऑफ यूक्रेन, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ये जो दो रीजन है ना, ये डोनबास रीजन, these two regions, Luhansk and Donetsk, रशिया के बहुत पास है. This region is the Donbas region, and in this region there is a lot of pro-Russian population, and there was some kind of rebellion already going on. In
22 on 21st February 2022, Russia officially recognized DPR, Donetsk People Republic and Luhansk People Republic. उसने ये जो डोनबास रीजन में दो टेरिटरीज थी, पीपल वर ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग, फाइटिंग, रेबेलिंग. रशिया रिकॉग्नाइज्ड these two republics and on 24th Feb 2022 रशिया ने इन्वेजन कर दिया. किसका? यूक्रेन का. एंड दे ऑल्सो टुक ओवर कंट्रोल ओवर ज़ेपोरिज़िया एंड खेरसोन. ये पूरा टेरिटरी, एंड रशिया सेज अब ये पूरा टेरिटरी, और पुतिन सेज कि ये पूरा टेरिटरी पूरे टाइम के लिए अब हमारा है, बिकॉज अब वो यूक्रेन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. एंड फॉर देम access to Black Sea through access to Crimean Peninsula is crucial, and thus for their security they have taken over it. Ukraine is not willing to. So there is war going on this front also, but we have seen Ukraine has invaded, Ukraine has also invaded Russia from this side. तो वो सारे reasons हमने पढ़े. When we were studying Russia, we have studied. वो एक अपने कुर्स्क रीजन पढ़ा था, कुर्स्क रीजन पढ़ा था, जहाँ पे largest invasion of Russia after World War II has taken place recently. तो डोनबास रीजन समझ में आया कौन सा रीजन है? अब देखो यहाँ पे on this side we had Sevastopol, one of the ports of Ukraine, that's also there. Kherson region, Russian President Vladimir Putin combatively announced annexation of 4 oblasts. कौन से 4 oblasts? Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia and Kherson, and claimed that these regions will be with Russia forever. 2022 में they recognized separate republic, but now they have done what? They have recognized these 4 territories as part of Russia. They have annexed it. एक जो पोर्ट है यहाँ पे, that is Mariupol. Mariupol, it's a city of north coast of Sea of Azov, on the mouth of Kalmius River. While internationally it is recognized as part of Ukraine, the city is under the de facto administration of Donetsk People Republic and now under the administration of Russia. Snake Island, another place in here which remains in news. यहाँ पे ना ये X shape island है. Can you see this cross shaped island? ऐसा और ऐसा. It's a very small island located on this side. यहाँ पे this is Snake Island. Snake Island पे ना रशिया अटैक करता रहता है. It remains in news for that reason. जैसे यहाँ पे भी देखोगे, in September 2024, Tu-22M3 missile carriers of Russian aerospace forces struck Snake Island in the Black Sea with KH-22 cruise missiles. इन सब के बारे में हम डिफेंस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि what are these missiles and what are these aircrafts, ये सब हम वहाँ पे पढ़ेंगे. But यहाँ पे in mapping what do we have to understand? Snake Island was in news recently. Where is it? It's in Black Sea. Who has control over it? Ukraine. रशिया तो उस पर अटैक कर रहा है. Okay, so this was about Black Sea and some of the territories in that region. Now let us come to Mediterranean Sea. Let's understand Mediterranean Sea. Now अब Mediterranean Sea में अगर जाते हो ना, तो Mediterranean Sea is kind of this whole region. ये मेडिटेरेनियन सी का ही आइगन सी पार्ट है, एक्सटेंशन है. मेडिटेरेनियन सी का आयोनियन सी भी है, मेडिटेरेनियन सी का एड्रियाटिक सी भी है, यहाँ पे टिरहेनियन सी है ना. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी. सो दिस एंटायर रीजन इज इन मेडिटेरेनियन सी. आपसे पूछा जाए विच आर द कंट्रीज विच टच मेडिटेरेनियन सी, यू विल बी लाइक, इसीलिए व्हाई डू आई वांट यू टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप्स rather than cramming the list of 21 countries, 22 countries. आपको क्या सोचना है? मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से शुरू होगा, तो पोर्तुगल तो उस तरफ रह गया. विल हैव स्पेन, विल हैव फ्रांस. यहाँ पे ना देयर इज अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड मोनाको, फ्रांस में, यहाँ पे ऐसे है. ये कहाँ आ गए हम? हाँ, फ्रांस, मोनाको. ये ना बहुत छोटा सा एक
फिर हो गया। हाँ यहीं पे कुछ ऐसा है विच हैज एक इस तरह का कट है विच हैज टेरिटरी टचिंग मेडिटेरेनियन सी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज विच हैव बॉर्डर्स विद मेडिटेरेनियन सी। तो स्पेन, फ्रांस, मोनाको, देन वी हैव इटली, है ना। इटली के बाद इफ यू कम हियर एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी इज आल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, देखो बोस्निया हर्जेगोविना का थोड़ा सा पार्ट एड्रियाटिक सी को टच कर रहा है। मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस। देन इफ यू कम हियर टर्की इन द सेम वे। अभी साइप्रस को नहीं, साइप्रस और माल्टा को नहीं लेते, एक मिनट के लिए, विल कम टू आइलैंड नेशंस। टर्की के बाद सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, लिबिया, तुनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, प्लस साइप्रस यहां और यहां पे माल्टा है, दो आइलैंड नेशंस। दीज आर द कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसको याद करने में। तो ये हमें वैसे भी पढ़ना, वी हैव टू एनीवे स्टडी टू अंडरस्टैंड विच आर द कंट्रीज विच आर नेबर ऑफ एड्रियाटिक सी, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। अदरवाइज तो इट्स वेरी इजी। देखो स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, ये तो अपन ने देखा है, वेरी इजी। एंड नॉर्दर्न अफ्रीका भी अपन ने देखा है, इजिप्ट, लिबिया, तुनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, राइट। देन साइप्रस एंड माल्टा। तो दिस इज काइंड ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग मैपिंग में जो आप पढ़ना चाहोगे। बट इफ यू गो सिस्टमैटिकली, इफ यू अंडरस्टैंड द कंट्रीज, इट विल बी द इजिएस्ट। इट विल बी इजिएस्ट तो नहीं ना, इजिएस्ट विल बी इंडिया कौन से ओशन में है। आर वी गेटिंग दिस? तो कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, आपके नोट्स में भी ना उसी ऑर्डर में लिखा होगा मैंने। देयर आर 21 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। यहां पे मैं इस तरह से चल रहा हूं, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, कोई प्रॉब्लम इसमें? इजिप्ट, लिबिया, तुनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन। प्लीज नोट देयर इज नो पोर्तुगल, पोर्तुगल उस तरफ है, अटलांटिक सी में, मेडिटेरेनियन में नहीं है। फ्रांस, मोनाको, इटली। अब इटली के बाद एड्रियाटिक सी में इटली था, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया, फिर ग्रीस, माल्टा एंड ग्रीस। उसके आगे टर्की था, वो वी स्टार्टेड विथ माल्टा एंड साइप्रस। नाउ फॉर अदर स्टूडेंट्स इट मे बी डिफिकल्ट बिकॉज वो ना रैंडमली पढ़ रहे होंगे, कोई ट्रिक लगा के, कोई शॉर्ट फॉर्म लगा के एल, वो नहीं करना है हमें। मैप पे चीजों को ध्यान से देखना, इससे वी विल अंडरस्टैंड द मैप प्रॉपरली, विल अंडरस्टैंड IR properly, will understand world history properly, and it will be easy for us to remember these countries. अभी हम आते हैं, we'll come to Adriatic Sea and जो difficult वाला पार्ट है ना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया, नीचे तो ग्रीस। अब डिफिकल्ट रहा है तो याद ही हो गया आपको। while doing यूरोपियन यूनियन, नाटो, हमने इस एरिया को थोड़ा सा एम्फेसाइज किया था, राइट? यू रेजिंग योर हैंड, बस खुजली ना ऐसे करा करो, ये ऐसे जाके ऐसे खुजली नहीं करते हैं, ऐसे कौन करता है ऐसे? ये तरुण बहुत बोलता है। चलिए मोनाको के बारे में थोड़ा समझते हैं। इट इज अ सोवरेन स्टेट, अ वेरी स्मॉल स्टेट, and is located a few kilometers west of Italy region. It's bordered by France to east, north and west. East में भी, north में भी, west में भी. Only on the southern side what does it have? Mediterranean Sea, and it is the second smallest sovereign state of the world after Vatican City. Vatican City तो इटली के बीच में है. It's very small, and after that second smallest state is Monaco. So 21 countries which have
which are neighbors with Mediterranean Sea. कौन मुझे पूरा बता देगा? नहीं, आप मत हाथ उठाओ, आप बताओगे पक्का? आप बताओगे सीक्वेंस में? नहीं, आपसे पीछे जो बैठे उनको बता देना, आप पे भी आते हैं ऐसे, याद दिख तो नहीं रहा? हाँ बताओ, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, बस सीक्वेंस में रहना चाहिए। टर्की, सीरिया, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, लिबिया और अल्जीरिया के बीच में तुनिशिया। अल्जीरिया के बाद बोल रही है ना? लिबिया, तुनिशिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को। टुडे विल स्टडी मोरक्को आल्सो। स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, एक रह गया अल्बेनिया एंड ग्रीस, माल्टा एंड साइप्रस, है ना? सीक्वेंस जरूरी है। ये पढ़ते टाइम आपने ये भी नोटिस किया, अच्छा लिबिया और अल्जीरिया के बीच में वहां पे तुनिशिया। व्हाट इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन तुनिशिया? इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग they'll ask you which are the countries which are in the neighborhood of Mediterranean Sea. No, I'm saying जो भी पूछें, your understanding of the world map should be this much कि they say कि तुनिशिया borders Egypt, you should be like क्या बकवास कर रहे हैं? We are not specifically studying Tunisia today, but when we are studying it systematically, you will know Tunisia is between Libya and Algeria. Okay, let's come to Aegean Sea. Aegean Sea यहाँ पे टर्की और ग्रीस के बीच में जो सी है ना, that is Aegean Sea. So it's an extension of Mediterranean Sea. Europe, it is located between Balkans and Anatolia. Anatolia is Turkey and Balkans, this part is of Balkans, तो यहाँ पे located है. In the north, it is connected with Marmara Sea, which in turn is connected to Black Sea. We know all that. Adriatic Sea जो difficult वाला था, है ना? अब देखो, please note, अल्बानिया तक एड्रियाटिक है, ग्रीस नीचे आ जा रहा है. ग्रीस इज पार्ट ऑफ आयोनियन सी, ग्रीस इज हैविंग बॉर्डर विथ आयोनियन सी. तो एड्रियाटिक सी में वी हैव इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना हैज अ स्मॉल कंपोनेंट, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया. अगर ये वाला एड्रियाटिक सी में यू आर कंफर्टेबल, नो, यू विल बी कंफर्टेबल विथ द एंटायर मेडिटेरेनियन सी. प्रॉब्लम कहां पे आएगा? प्रॉब्लम कैन ओनली कम इन एड्रियाटिक सी. प्रॉब्लम कैन ओनली कम इन एड्रियाटिक सी. आर वी गेटिंग दिस? है ना? तो फिर से एड्रियाटिक सी वाली कंट्रीज, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया. ग्रीस नीचे है, मेडिटेरेनियन का पार्ट है, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ एड्रियाटिक सी. सो इफ दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन एड्रियाटिक सी, विल वी बी कंफर्टेबली एबल टू आंसर दैट? सर देयर वर मेनी कॉरिडोर्स दैट वर इन न्यूज. हाँ, वो छोटे छोटे कॉरिडोर्स कर लेंगे हम, डोंट वरी. लेट्स कम टू इटली. एक कंट्री इटली हम डिस्कस करना चाहते हैं. विल नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ यूरोप, बट सम कंट्रीज. जैसे इटली, ये थोड़ा लगता है ना पैरो जैसा, हील्स. व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? सिसली नहीं, सैंडल्स में क्या बोलते हैं इसे? क्या सिलेटोस क्या होता है? हील्स तो ये हो गए ना, ये क्या हुआ? तो हमारा तो प्लेन होता है ना, ऐसे वालों का क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, इनको भी कुछ नहीं पता फैशन के बारे में. तो आ जाओ आप छोड़ दो. इटली पे आते हैं. इटली देखो, पेनिनसुलर कंट्री लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी, ये तो कुछ स्पेशल है नहीं. नेबरिंग कंट्रीज में जाते हैं. अब ऑन दिस साइड वी हैव फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया. फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ये चार कंट्रीज. देखो, इट डजंट हैव लैंड बॉर्डर विथ, इसके अंदर इनक्लेव्स हैं. वी हैव वेटिकन सिटी एंड वॉल, उस पे आएंगे, बट इट कैन हैव बॉर्डर्स ओनली हियर. व्हाट इज दिस? फ्रांस. अब मोनाको के साथ इसका बॉर्डर नहीं है. मोनाको इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ इज सराउंडेड बाय फ्रांस. ओनली इन द साउथ इट हैज बॉर्डर्स विथ मेडिटेरेनियन सी. तो मोनाको डजंट हैव बॉर्डर विथ Italy. So we have what? We have France, Switzerland, Austria and Slovenia. Croatia नहीं, हाँ, and Slovenia. And within this thing,
we have two microstates, one is Vatican City, other is San Marino. इटली के टेरिटरी के अंदर there are two other sovereign countries, Vatican City and San Marino. So these can be considered the land border जिनका उनके साथ है, किसके साथ? इटली के साथ है. Then if we look at water bodies around it, on this side we have Adriatic Sea, यहाँ पे we have Ionian Sea, यहाँ पे we have Tyrrhenian Sea, टिरियन भी बोल देते यार, टायरेनियन सी एंड यही है ना, ये सी है. यहाँ नीचे माल्टा, वी while studying this thing, Mediterranean Sea की country we have seen Malta and Cyprus. Malta and Cyprus we had also studied somewhere else. यूरोपियन यूनियन के पार्ट तो था बट कहीं और भी पढ़ा था, बताओ. अपन we were talking, yes, citizenship. It's easy to get citizenship in Malta and Cyprus, but now competing with it is वनुआतु, कुछ वैसी कंट्री है ना पैसिफिक ओशन में, जहां पे सिटीजनशिप मिलना आसान है, राइट? ओके. माउंट इटना, ये सिसिली है. लाइक if I come here, no, this island is the island of Sicily. इटली में this island is the island of Sicily, and there's a volcano here. It is Europe's most active volcano, Mount Etna. It is a stratovolcano on the east coast of Sicily. Satellite images show that the volcano has erupted so much in 2021 that it has grown 30 meters or 100 feet. The height, stratovolcano है तो stratovolcano we have already explained what it is. Strata में it will keep on increasing its height, and Etna has been so active, it has been emitting so much lava, and it has been solidifying कि within a year its height increased by 30 meters. There are some other active volcanoes in Italy. There is Mount Vesuvius near Naples. It erupted in 1944. There is Stromboli in the Aeolian Island. There were three major explosions here in 2019 also. So Italy is one country in Europe where we have very important volcanoes also. We should be comfortable about this also. Now let's come to Catalonia. Catalonia ना एक US बोलो, स्पेन में territory. It is part of Spain only. But these people are like आजादी आजादी, we need आजादी. तो फिर स्पेन वाली गवर्नमेंट बोलती है रुको, जो ये डिमांड करता है उसे लेके जेल में डालते हैं. बट दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड एग्जाम में आ जाता है. यूपीएससी इज लाइक कहां कहां आजादी चाह रहे हैं ये लोग, इन सबको डाल देते हैं. नहीं, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. तो कैटलोनिया इज अ हिस्टोरिक रीजन ऑफ स्पेन. यहाँ पे इट हैज including northeastern provinces of Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida. The autonomous community of Catalonia occupies a triangular area in the northeast corner of Spain. It is bordered by France and Andorra. देखो यहाँ पे Andorra है and this entire country France, Mediterranean Sea, and उस साइड तो अपनी country है. Pyrenean mountain ranges separated Catalonia from France. So basically Pyrenean mountain ranges separate स्पेन फ्रॉम फ्रांस. तो अब यहाँ पे कैटलोनिया है तो कैटलोनिया और फ्रांस को सेपरेट कर रहा है. ग्रोइंग कॉल फॉर इंडिपेंडेंस. सिंस 2010 देयर हैज बीन अ ग्रोइंग सपोर्ट फॉर कैटलन इंडिपेंडेंस. इन अक्टूबर 2017 द पार्लियामेंट यूनिलेटरली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. कौन सा? कैटलोनियन पार्लियामेंट. उनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है देयर लाइक हम आजाद है. स्पेनिश सेनेट वोटेड इन फेवर ऑफ डायरेक्ट rule by removing Catalan government and called a snap regional election. The Spanish Supreme Court also imprisoned 7 former ministers of Catalan government जो आजादी ज्यादा कर रहे थे, वो जेल में गए on charges of rebellion and misuse of public fund. But in 2021 all those in prison were pardoned by Spanish government. Again वो पीसफुल तरीके से चीजों को ठीक करने के पर्सपेक्टिव से. बट कैटलोनिया, यू इन योर टेस्ट्स, इन योर जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर ओवरऑल इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू विल सी ये क्वेश्चन पास्ट में भी पूछा गया है एंड कैन बी आस्क्ड अगेन. स्पेन में कैटलोनिया रीजन. कैनरी आइलैंड्स. अब कैनरी आइलैंड्स ना स्पेन का ही आइलैंड है, स्पेन कंट्रोल्ड आइलैंड है, दो दे आर लोकेटेड इन अफ्रीका. अफ्रीका, कैन यू सी द स्पेन, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. यहाँ पे देर आर islands called Canary Islands. These are volcanic islands. In the past volcano eruption has occurred, islands have been created. अब स्पेन से लोग यहाँ जाते हैं टूरिज्म के लिए,
सुंदर बीचेस देखने के लिए? Canary Islands. Okay, so Canary Islands is an archipelago in the Atlantic Ocean. It's a Spanish autonomous community. It's famous for their white beaches, white sand beaches. It was formed by volcanic eruption millions of years ago, and this lies only 67 kilometers from the coast of Western Sahara and Morocco. Spain से तो जैसे आप मैड्रिड से it is 1700 kilometers away. It's very close to here, close to this place, but Spain has had control over it. कौन सा आइलैंड? कैनरी आइलैंड्स, मल्टीपल आइलैंड से आर्किपेलागो.